Hello class. Now in this lecture we will see the another component which is used in case of the KG-tronic system, that is field distributor plunger and barrel assembly. Okay, so it is actually located at this section. Okay, so this in this section, from this section actually the distribution of fuel or metering of fuel are take place. Okay, so here at the center position there is one plunger is located, which I have magnified over here. This box shaded section I have magnified over here. Okay, and whatever the plunger present at center, this plunger is nothing but the plunger located at this position. This plunger, the end of this plunger is rest on our airflow sensor plate. Okay, we can see in the previous slide. In the previous slide, as I in the previous lecture I have explained, this airflow sensor plate pushes this plunger up and down. Okay, inside the barrel. Okay, so similarly, this is a plunger. This is a plunger. This plunger which is rest on the airflow sensor arm. Okay, so I have magnified this section only. So this is your plunger which is reciprocate inside this barrel. So with respect to the air amount entering into the inlet manifold with respect to the throttle depression by driver, okay, this air sensor plate move upward and downward with respect to the density of air and the accelerator pedal depression, and with respect to that this plunger will move up and down inside the barrel. Okay, so this is a movement of plunger inside the barrel take place likewise. Now we'll see the how the what is the construction, what is the exact constructional feature of this plunger. If you look for this barrel, this is a barrel and the plunger assembly I have to have shown over here only. Remaining thing is just don't consider whatever the remaining thing present over here. Only consider this is a plunger and the barrel in which it is supposed to be reciprocate. So this is present over here. So the barrel is having one rectangular hole. Okay, rectangular hole it have exactly in line with this chamber, upper chamber and the lower chamber. This is the chamber. Okay, this chamber having two portion, upper chamber and lower chamber, separated by the diaphragm. Okay, so this opening, vertical rectangular slit, we can say this slit or cutted portion is exactly uh, directed inside this chamber, and the chamber is equal to the number of cylinder present in engine. If for example अगर गाड़ी में 4 cylinder engine है, so 4 different barrel, sorry, 4 different chamber, upper and lower chamber will located around this barrel and plunger assembly. ओके, मीन्स अगर 4 सिलेंडर है तो ये अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर जो असेंबली है, पोर्शन है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे अराउंड दी बैरल एंड पंचर लोकेट होंगे. अभी हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो इस क्रॉस सेक्शन में हमें दो चेम्बर दिख रहे हैं. ये चेम्बर एक अलग पिस्टन के सिलेंडर के लिए और ये चेम्बर एक अलग सिलेंडर के लिए, क्योंकि आप देख सकोगे कि इस चेम्बर से एक लाइन जा रहा है, डायरेक्टेड किया है, डायरेक्टेड हो रहा है एक सिलेंडर को, दूसरे चेम्बर से दूसरा इंजेक्टर का लाइन जा रहा है, वो दूसरे सिलेंडर में जा रहा है, दूसरे सिलेंडर के इनलेट मैनिफोल्ड. सो जितना नंबर ऑफ सिलेंडर रहेंगे उतने नंबर ऑफ दिस अपर एंड लोअर चेम्बर असेंबली अराउंड द प्लंजर बैरल असेंबली लोकेट है. अभी इस जगह मैंने सिर्फ इस साइड का, मतलब लेफ्ट साइड का ही सिर्फ चेम्बर असेंबली दिखाया, राइट साइड का असेंबली मैंने नहीं दिखाया, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. बट इंडिविजुअल सिलेंडर के लिए इंडिविजुअल बैरल, इंडिविजुअल चेम्बर अपर लोअर चेम्बर असेंबली रहेगा, which is located around the barrel and the plunger assembly. Okay, so नीचे हम सिर्फ barrel और जब plunger assembly देख रहे हैं. So जो barrel होता है उसमें ऐसा vertical slit होता है which is directly in front of this chamber. ओके, सो जैसे इस चेम्बर के सामने ये स्लिट है, वैसे ही इस साइड में तो दूसरा चेम्बर रहेगा, अपर चेम्बर दूसरे सिलेंडर के लिए, उसको भी ऐसा ही कट रहेगा. अगर इसके बैक साइड में अगर दूसरा चेम्बर है तो उसके सामने भी ऐसा ही कट रहेगा और इसके सामने भी वैसा ही कट रहेगा. सो जितने अभी क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है प्लंजर का, वो जब इस इनलेट
जो जा रहा है अपर चेंबर में, उसके अगर आगे पूरा आ गया तो इनलेट टू अपर चेंबर बंद हो जाएगा। ओके, और जब ये पूरा ऊपर चला जाएगा प्लंजर बैरल में, तब इनलेट टू अपर चेंबर जो इनलेट है वो पूरा ओपन हो जाएगा। बट ये कितना परसेंट ओपन रखना है, कितना परसेंट क्लोज रखना है, वो कंट्रोल कौन करता है? सो ये जो एयर सेंसर प्लेट का लिंक है जो इसको ऊपर नीचे पुश करता है, वो उसे कंट्रोल करता है। सो जितना एयर फ्लो ज़्यादा जाएगा सिस्टम में इनलेट मैनिफोल्ड थ्रू, उतना ये एयर सेंसर प्लेट क्या होगा, आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, और वो विथ रिस्पेक्ट टू बैरल को, सॉरी प्लंजर को बैरल में ऊपर पुश करेगा। सो इतना ये इनलेट जो जा रहा है अपर चेंबर को, वो क्या होगा, ओपन होगा फ्यूल को एंटर होने के लिए। ओके, सो दिस स्लीट आप देख सकोगे कि जितना प्लंजर जितना ऊपर जा रहा है, उतना ये जो एरो का साइज है वो बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये प्लंजर को ऊपर कौन पुश कर रहा है, एयर सेंसर प्लेट, विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ एयर कमिंग इनटू द सिलेंडर, which is again depend on the load of the engine, and load of the engine is directly controlled by the ड्राइवर कितना एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करता है, उसके प्रोपोर्शन में ही वो लोड के प्रोपोर्शन में ही एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करता है। सो एक्सीलरेटर पेडल जितना प्रेस होगा, जितना डिप्रेस होगा, विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली हमारा जो है प्लंजर बैरल के अंदर अप एंड डाउन मूव करेगा। सो दिस इज द थिंग कि विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्रेशन ऑफ एक्सीलरेटर पैडल, our slit opening or the inlet to the upper chamber will regulate it due to that thing. Metering action is take place. Okay, who's metering? The metering of the fuel is take place due to the opening and closing of or the movement of the air sensor plate with respect to the density of the air, and or we can say the depression of the accelerator pedal. Okay, so this is a thing happening in case of the barrel plunger assembly. So हम यहाँ clearly देख सकते हैं कि ये जो एरो है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम स्मॉल मीटर फ्यूल क्वांटिटी, मीडियम मीटर फ्यूल क्वांटिटी एंड लार्ज मीटर, मतलब जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर पर ज़्यादा प्रेस करेंगे, उतना एयर डेंसिटी जो सिस्टम के अंदर जाएगा वो बढ़ेगा, और वो एयर सेंसर प्लेट को ऊपर पुश करेंगे, और एयर सेंसर प्लेट अपने ही प्लंजर को ऊपर पुश करेगा। सो उतना ओपनिंग जो है ऊपर चेंबर में बढ़ता जाएगा, और उतना अमाउंट ऑफ फ्यूल बढ़ेगा। सो अभी हो क्या रहा है देखिए, जो फ्यूल है ये हो गया प्लंजर और बैरल के बारे में। अभी हम अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पाइप्स और नंबर ऑफ लाइंस आर कमिंग इनटू दैट डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक, तो कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है वो हम अभी देखेंगे। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि एयर फिल्टर से फ्यूल आ रहा है जो हमारे 3 to 4 बार के प्रेशर पे है, वो फ्यूल आ रहा है, आने के बाद वो उसको दो वे है, एक तो प्रेशर रेगुलेटर में भी जाता है और एक वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में भी जाता है। ओके, सो हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक वाला देखते हैं सेक्शन। सो यहाँ से आता है हमारा फ्यूल एयर फिल्टर से, जो इस वे से अंदर आया। सो यो यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद वो हम यहाँ से इस वे से जितना ओपनिंग है उतने प्रोपोर्शन में अपर चेंबर में एंटर होगा। एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल इस पाथ से भी आ रहा है। ओके, इस ये जो लाइन है इसके पीछे से हो जा रहा है यहाँ से, और प्लंजर के ऊपर के साइड भी जा रहा है। ओके, प्लंजर के ऊपर भी वो जा रहा है। और दूसरा ये जो अपवर्ड पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ देख सकोगे आप, ये जो पाइप है यहाँ से लेते हुए वो वार्म अप रेगुलेटर में घुस रहा है, और वार्म अप रेगुलेटर से वो फिर से रिटर्न होके फ्यूल टैंक में थ्रू प्रेशर रेगुलेटर जाने वाला है रिटर्न लाइन से। ओके, सो फिलहाल के लिए हम ये जो ऊपर का जो पोर्शन जो जा रहा है वार्म अप रेगुलेटर को, और वार्म अप रेगुलेटर से सीधा वो फिर से प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए जो रिटर्न फ्यूल टैंक को जा रहा है, वो हम भूल जाते हैं सेक ऑफ टाइम। ओके, वी ओनली कंसिडर द लाइन फ्रॉम द एयर फिल्टर, फ्यूल इज कमिंग एट द प्रेशर ऑफ 3 to 4 bar and it entering to the portion present inside the barrel and plunger and entering to the upper chamber. At the same time, part of fuel is also moving through this way and try to apply some amount of pressure at the upper side or at the head of the plunger. Okay, so ये क्यों है अपर के पिस्टन के अपर साइड में भी प्रेशर क्यों हम दैट प्लंजर के अपर साइड में भी हम प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं फ्यूल का, इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी ना ड्राइवर सडनली एक्सीलरेट करता है, सडन एक्सीलरेट करेगा और सडन से डी एक्सीलरेट करना, मतलब एक्सीलरेटर हम प्रेस कर रहे हैं और फटाक से एक्सीलरेटर छोड़ रहे हैं। सो एयर सेंसर प्लेट also will move in that fashion only फटाक से, और समटाइम एयर सेंसर प्लेट फ्लक्चुएट हो सकता है, बार बार वाइब्रेट फ्लक्चुएशन ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना नीचे जाना, ये एक्शन बार बार
होते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ ओपनिंग। सो ये वाइब्रेशन है वो उस रिस्पेक्ट में ये जैसे कि ये अपना प्लंजर एयर सेंसर प्लेट के लिंकेज पे अटैच है, तो उस रिस्पेक्ट में ये बैरल भी ये प्लंजर भी बैरल में ऊपर नीचे कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहेगा अननेसेसरी। ओके, सो टू डैम दैट वाइब्रेशन, ओके, जो भी मोमेंट है प्लंजर का बैरल के अंदर वो वाइब्रेट ना होते हुए कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। मतलब ऊपर जाना है तो स्लोली ऊपर जाए, नीचे आना है तो स्लोली नीचे आए, या कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट ना होते रहे ऊपर नीचे ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो कंट्रोल एक्शन होने के लिए हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्रेशर वी आर अप्लाइंग on the head of this what we can say on the head of this प्लंजर। अगर वो नहीं रहा तो हम जो हमारा आरपीएम मीटर रहता है डैशबोर्ड पे, उसमें आपको कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन दिखेगा कि आपको कांस्टेंट आरपीएम नहीं दिखेगा कि बार बार हमारा जो आरपीएम का आरपीएम मीटर है, इंजन आरपीएम मीटर का जो नीडल रहेगा वो बार बार फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा। दैट विल मे हैपन अदरवाइज अगर हमने इसका जो प्लंजर का ऊपर नीचे का मूवमेंट अगर हमने डैम्प नहीं किया तो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सम पार्ट ऑफ फ्यूल का जो प्रेशर है वो पिस्टन के हेड के अबव भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो ना हम यहाँ आ जाते हैं फिर से जो पार्ट ऑफ फ्यूल आ रहा है वो इस बैरल के और प्लंजर के बीच में से होते हुए ऊपर आ जाएगा अपर चेंबर में। सो व्हेन इट द अमाउंट ऑफ फ्यूल व्हिच इज एंटरिंग टू द अपर चेंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट द परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस इनलेट। जैसे कि इधर कितना परसेंट ओपन है, इधर कितना परसेंट, इधर फुल परसेंट 100% ओपन है, सो ये कितना परसेंट ऑफ ओपनिंग है उसके रिस्पेक्ट में ही द अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटरिंग टू द upper chamber, and whenever it reaches to the upper chamber it start to push this diaphragm in downward direction। okay, because ये डायफ्राम क्यों रखा है हमने, क्योंकि जैसे ही whenever fuel entering to the upper chamber through this small hole, okay, it passing through this small hole into the upper chamber, अब ये small hole will act as a orifice, and हमने फ्लूइड में देखा है कि orifice is the device across which pressure drop is take place। okay, across which pressure drop is take place। so जैसे ही हमारा fuel through this narrow opening that is which behave as orifice जब upper chamber में आता है उस orifice से तो pressure drop हो जाएगा। so जो pressure drop हुआ है वो प्रेशर अगर हम इट्स डायरेक्टली इंजेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे ड्रॉप प्रेशर वाला फ्यूल, सो इट वोंट able to run that engine at required rpm। so हम क्या करते हैं, जैसे to maintain that pressure we are having here one diaphragm। so जो भी फ्यूल एंटर हो रहा है आफ्टर ड्रॉपिंग प्रेशर किसके वजह से ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओरिफाइस इफेक्ट, क्योंकि स्मॉल स्लिट से उसको अपर चेंबर में आना है ना, स्मॉल है ये, बहुत ही स्मॉल है। so whenever it coming due to the orifice action somewhat pressure drop is take place, मतलब 3 to 4 बार है वो somewhat 2 बार पे आ जाएगा। so to regain that 3 to 4 bar pressure we have here diaphragm। okay, so जो भी फ्यूल है वो पहले इसमें फील्ड होते रहेगा इस अपर चेंबर में, और जब फर्दर फ्यूल इसमें आ जाएगा इसके वॉल्यूम के से ज्यादा, अपर चेंबर के वॉल्यूम से ज्यादा, ये डायफ्राम को नीचे पुश करेंगे। सो ड्यू टू एक्शन ऑफ पुशिंग दैट डायफ्राम डाउनवर्ड अगेन दैट प्रेशर बिल्टअप टेक प्लेस। दैट जो भी प्रेशर 2 बार हो गया था वो 4 बार या 3 बार पे फिर से अचीव हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो डायफ्राम को नीचे पुश करके प्रेशर बिल्टअप करेगा अपने आप में। ओके, एंड आफ्टर दैट फ्यूल गेट सेंडेड टू द इंजेक्टर थ्रू दिस वे विथ to the respective cylinder or with through the into the respective inlet manifold। okay, not inlet manifold, inlet port of that respective cylinder। हम manifold injection नहीं कर रहे हैं, हम port injection कर रहे हैं। so with respect to that port में वो वहां से inject हो जाएगा। so this is the thing why upper and lower chamber is present over here। okay, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर हम क्या करें कि डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल आता था और डायरेक्टली ये अपर चेंबर लोअर चेंबर नहीं रहता था, डायरेक्टली हम यहाँ फ्यूल इंट्रोड्यूस कर देते थे और विदाउट डायफ्राम डायरेक्टली इसमें छोड़ सकते थे। बट बिकॉज ऑफ द ओरिफाइस इफेक्ट प्रेशर ड्रॉप होता है और फिर से प्रेशर रीगेन करने के लिए हमने डायफ्राम दिया, और वो डायफ्राम का जो पुशिंग एक्शन होता है उसके वजह से प्रेशर बिल्टअप हो जाता है जो ड्रॉप हुआ था ओरिफाइस की वजह से। ओके, सो दिस इज द थिंग हाउ एक्चुअली फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्लंजर बैरल असेंबली वर्क। आई टोल्ड यू एट द वेरी इनिशियल ऑफ दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस केज जेट्रॉनिक सिस्टम कि ये केज जेट्रॉनिक है, कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम है। कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम में जो फ्यूल का मीटरिंग है वो 2 वे से हो सकता है, आइदर बाय कंट्रोलिंग एरिया ऑफ ओरिफाइस
ओके, वो ओरिफाइस का एरिया इंजेक्टर का भी हो सकता है या इस डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक का भी हो सकता है। ओके, और सेकेंड थिंग, बाय कंट्रोलिंग द इंजेक्शन प्रेशर। सो ये जो केजी ट्रॉनिक है उसमें इंजेक्शन प्रेशर कंट्रोल, इंजेक्शन प्रेशर है वो कांस्टेंट है, 3 to 4 बार ही रहता है, इट वोंट चेंज। ओनली हम क्या करते हैं, ओरिफाइस ओपनिंग या इनलेट ओपनिंग वेरी करके फ्यूल मीटर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंजन डॉट। सो किसका हम फ्यूल इनलेट ओरिफाइस कंट्रोल करते हैं मीटरिंग के लिए? सो हम इंजेक्टर का नहीं करते, हम डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक का करते हैं। सो दिस इज द एरिया वेयर एक्चुअल मीटरिंग इज टेक प्लेस। अभी कुछ वेयर के वजह से अगर इसमें क्लियरेंस आ जाए, ओके, ज़्यादा रिकमेंडेड क्लियरेंस से ज़्यादा क्लियरेंस होके वेयर आउट होके क्लियरेंस बढ़ जाए, सो इट विल नॉट operate or it will not respond as driver press the accelerator pedal. So this may the causes कि अगर accelerator press कर रहा है ड्राइवर और उस रिस्पेक्ट में अगर गाड़ी एक्सलेरेट नहीं हो रही है, सो इट मे बी चांसेस ऑफ वेयर ऑफ दिस प्लंजर, सो उसके वजह से लीकेज हो रहा है यहाँ से। ओके, और अदरवाइज ऊपर से जो प्रेशर है वो जो आ रहा है प्लंजर के ऊपर, अगर वो प्रॉपर नहीं रहा तो टैकोमीटर जो है इंजन का आरपीएम मीटर वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। ओके, या डायफ्राम लीक है, ये भी रीजन हो सकता है, डायफ्राम फट गया है या किधर से तो ब्रेक टीयर हो गया है। सो दिस में द वेरियस रीजन में पॉसिबल टू इनप्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस केजीट्रॉनिक सिस्टम। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, इज द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अगर क्योंकि यही हमारा जो फ्यूल है वो मीटर कर रहा है। ओके, और वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, वो कर रहा है एयर सेंसर प्लेट के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। एयर सेंसर प्लेट जितना मूवमेंट करेंगे उतनी ही मूवमेंट के हिसाब से our plunger will move inside the barrel. So this is the thing which working together. Okay, I hope you have understood this working of and the construction of this fuel distributor plunger barrel assembly. If you feel any difficulties, do ask me in our comment section. Thank you.